Hello, my dear students. Today we will study a poem titled Rain on the Roof, written by Coates Kinney. Coates Kinney is an American poet who has written about nature and its beauty. So his one of the poem, Rain on the Roof, is very interesting poem. This poem has been prescribed for CBSE and state boards for class 9th. So today we will study this poem. ये poem हमें बताती है, this poem tells us that when there is a rainfall, then falling of the rain makes a melodious voice, melodious sound, music, and that music touches our heart. And then a lot of recollections and imaginations and dreams come in our mind. And those dreams and imaginations makes our life or makes our mind and heart full of joy. So this is such type of poem. Now I will explain this poem stanza by stanza. This poem has 3 stanzas. Okay, so first stanza now I will explain. Please try to understand. When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and the lie listening to the patter of the soft rain overhead. The poet says, poet कहता है, when the humid shadows hover. Here humid shadows means humid shadows. Humid shadows means dark clouds. Dark clouds. Humid means पानी से भरे हुए. Humid shadows. Humid shadows means dark clouds. Hover. Hover means wandering over. ऊपर आकाश में जब पानी से भरे हुए बादल मंडराते हैं, starry spheres. Starry spheres. Starry sphere means night sky. जब रात को तारे निकलते हैं तो उसको कहते हैं starry spheres या night sky. And the melancholy. Melancholy means peace and tranquil. बिल्कुल शांति का माहौल, सन्नाटा. हिंदी में क्या कहते हैं इसको? मेलेंचली को सन्नाटा. Melancholy darkness gently weeps in rainy tears. Rainy tears means falling of rain droplets. Falling of rain droplets. What a bliss. Bliss means moment of joy. Moment of joy. What a bliss to press the pillow. Pillow होता है तकिया.
ऑफ ए कॉटेज चैम्बर बेड। जो आपका बेड है वो एक कॉटेज के अंदर है, कुटिया के अंदर है। कॉटेज चैम्बर बेड मीन्स ड्वेलिंग यूनिट, ड्वेलिंग यूनिट रहने की जगह। ओके, cottage and lie listening to the patter. Patter means sound of falling rain, sound of falling raindrops. Of the soft rain overhead. So this is the first stanza. Rain on the roof. Poet कहता है जब आकाश, when the humid shadows hover over all the starry spheres, जब रात को starry spheres के आगे काले काले बादल मंडराते हैं, एंड द melancholy डार्कनेस, और उसके बाद बिल्कुल चारों तरफ बिल्कुल शांति और डार्कनेस, अंधेरा छा जाता है, चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है, और बादलों से जेंटली वीव से, और ये बादल हैं, ये धीरे धीरे पानी की बूंदें हमारे पृथ्वी के ऊपर डालते हैं। उस समय जो बूंदें जिस कुटिया के अंदर में, जिस बेड, कुटिया के बेड में मैं जो सोया रहता हूं, कवि कहता है, और वो पानी की बूंदें जब उसकी छत के ऊपर गिरती हैं, व्हाट ए ब्लिस, तो मुझे बहुत ही आनंद आता है अपने तकिए को दबाने में। अर्थात कहने का मतलब है कि द पोइट इंजॉयज व्हेन ही is sleeping in a cottage chamber bed and the rain is being falling on the roof of his room and lie listening to the, और बोलता है कि मैं उसकी टप टप की आवाज सुनता हूं, of the soft rain overhead, जो ऊपर से soft rain मेरी कॉटेज चैम्बर की छत के ऊपर गिरती है, तो मुझे एक बहुत ही आनंद आता है, और उस समय अपने तकिए को दबाने में भी मुझे बहुत आनंद आता है। ये एक सिचुएशन है जब रेन स्टार्ट होती है, रात का समय होता है, और आपके कॉटेज चैम्बर बेड में आप सोए रहते हैं। पोइट कहता है उस समय बारिश होती है, तो बारिश की जो आवाज़ होती है, जो उसका म्यूज़िक होता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है, और उस समय अपने तकिए को दबाने में एक असीम आनंद महसूस होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ दिस पोइम, रेन ऑन द रूफ, यानी स्टार्टिंग ऑफ द रेन कैसे लगती है वो इस स्टेंजा में दिखाया गया है। ओके, नाउ प्रोसीड टू द second stanza of the poem. Every tinkle on the shingles has an echo in the heart, and 1,000 dreamy fancies into beauty being start, and 1,000 recollections weave their ear threads into woof as I listen to the patter on the rain upon the roof. Every tinkle on the shingles. Tinkle means tinkle. Tinkle means टप टप की आवाज, साउंड, स्लो साउंड। टिंकल मीन्स साउंड, स्लो, स्लो साउंड। कौन सी? बहुत स्लो साउंड
सिंजल्स, सिंजल्स मीन्स टाइल्स, जो आपके छत की जो टाइल्स हैं उसके ऊपर जो भी बूंद की जो आवाज, हैज एन इको, 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 इको मीन्स गूंजना, हैज, आपके हार्ट के अंदर एक गूंज पैदा करती है, हैज एन इको इन द हार्ट एंड 1,000 ड्रीमी फैंसीज, ड्रीमी फैंसीज, ड्रीमी फैंसीज मीन्स imaginations, imaginations, sweet imaginations. Dreamy faces means sweet imaginations. Dreamy fancies means sweet imaginations into busy being start. Busy being start means busy life. And 1,000 recollections. Recollections. Recollection means memories. Weave their air threads into woof. Woof. Woof means a sort of frame. Sort of frame. Okay. As I listen to the patter on the rain upon the roof, every tinkle on the shingles, छत की टाइल्स के ऊपर हर एक बूंद की जो आवाज, उसकी जो आवाज, हर एक बूंद की आवाज, हैज एन इको इन द हार्ट, मेरे हार्ट के अंदर एक गूंज पैदा करती है, एंड 1,000, और जब ये हार्ट के अंदर गूंज पैदा करती है, टिंकल ऑफ द, और टिंकल ऑन द सिंजल्स, उसके बाद मुझे हजारों इमेजिनेशंस, स्वीट इमेजिनेशंस मेरे माइंड में क्रिएट होती हैं, मीठी यादें मेरे दिमाग में आती हैं, इनटू ब्यूजी बीइंग स्टार्ट, क्योंकि अदरवाइज हमारा लाइफ का बहुत व्यस्त होता है, और ये सब चीजें व्यस्त लाइफ में नहीं आती। जब चारों तरफ इस तरह का माहौल होता है, सन्नाटा छाता है, और धीरे धीरे पानी की बूंदें छत के ऊपर गिरती हैं, तब हमें काफी सुहावनी यादें, स्वीट इमेजिनेशंस हमारे माइंड में क्रिएट होती हैं, बनती हैं, एंड 1,000 रिकलेक्शंस, और पुरानी यादें याद आती हैं, वीव देयर एयर थ्रेड्स इनटू वूफ, और वो एक शेप बनाती हैं, ये सारी यादें हमारे माइंड के अंदर, ये एयर थ्रेड्स मीन्स इमेजिनेशंस एंड रिकलेक्शंस, जो हमारी यादें और हमारे सुहाने सपने, ये सब एक ताना बाना बनते हैं विद द हेल्प ऑफ द एयर थ्रेड्स। एयर थ्रेड्स मीन्स इमेजिनेशंस की सहायता से एक माइंड के अंदर एक शेप बनती है, यादों की शेप बनती है, स्वीट ड्रीम्स की शेप बनती है। जैसे जैसे एज आई लिसन टू द पैटर्न, जैसे जैसे मैं टप टप की आवाज छत पर सुनता हूं, तो यादों और कल्पनाओं, सुहानी कल्पनाओं का जो एक फ्रेम है, वो उनसे मेरे माइंड के अंदर ये सब चीजें आती हैं। ये सब चीजें जब ऐसा माहौल नहीं होता तब नहीं आती, बिकॉज उस समय हम डिस्टर्ब रहते हैं। बट इस तरह के सन्नाटा वाला समय में केवल पानी की बूंदों की आवाज छत पर गिरते हुए उसका जो म्यूजिक जो पैदा होता है, उस म्यूजिक से मेरे माइंड के अंदर हजारों स्वीट ड्रीम्स पैदा होते हैं, और हजारों पुरानी यादें मेरे माइंड में आती हैं,
और वो सारी एयर थ्रेड्स मीन्स ऑल द ड्रीमी फैंसीज एंड रिकलेक्शंस, ये सारे एयर थ्रेड्स एक शेप बनाते हैं, यादों और सुहाने सपनों की एक शेप बनाते हैं। कब बनता है ये शेप? जब मैं अपने छत के ऊपर पानी की बूंदों की टप टप की आवाज सुनता हूं। सो दिस इज ऑल अबाउट द सेकेंड स्टेंजा ऑफ दिस पोइम। नाउ लास्ट स्टेंजा of this poem. I read this stanza first. Now in memory comes my mother, as she used in years agone to regard the darling dreamers, ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I list to this refrain, which is played upon the shingles by the patter of the rain. So this is the last stanza of this poem. Now in memory comes my mother. अब मेरी यादों में, जब मैं यादें कर रहा होता हूं इस तरह की, उसी समय मेरी याद में मेरी माँ, जो कि नाउ शी इज नो मोर, मेरी मां की याद आती है। एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन, वो ईयर्स अगोन मीन्स पुराने समय में वो क्या करती थी मेरी मां, वो सब यादें मेरे माइंड में आती हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, darling dreamers means poets, siblings. Darling dreamers means poets, siblings. Er means before. Ere she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look. Fond look. Very interesting look. Wherein as a fond look on me, as I list. List means listen. List means listen. As I list to this refrain. Refrain means a song, melodious song. Melodious song, which is played upon the shingles by the patter of the rain. तो पोइट कहता है, जब मेरे को 1000 ड्रीमी फैंसीज और रिकलेक्शंस मेरे माइंड में एक इन सब का एयर थ्रेड्स का एक मेरे माइंड में वूफ बन जाता है, शेप बन जाता है, उसी समय मेरी माँ की मेरे को याद आती है। जब बारिश होती है, टप टप की आवाज होती है, उसी समय आई रिमेंबर माई मदर एज शी यूज्ड इन ईयर्स अगोन। मेरी माँ की याद आती है और मेरी माँ उस समय हमारे को कैसे रात को कैसे हमें कहानियां सुना करके सुलाती थी, वो यादें मुझे आती हैं। टू रिगार्ड द डार्लिंग ड्रीमर्स, मेरे सभी भाई बहनों को, मुझे और मेरे सभी भाई और बहनों को, ऑल पोइट्स सिबलिंग्स, कहता सभी को मेरी मदर कुछ सुहावनी कहानियां सुनाती थी। एर सी लेफ्ट देम टिल द डॉन, जब तक हम सारे के सारे सो नहीं जाते थे तब तक हमें मेरी माँ सुहानी कहानियां सुनाती थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी, उसी समय जब रेन ऑन द रूफ हो रही होती है, उसी समय मेरी मदर का वो चेहरा अपने माइंड में ला करके मुझे बहुत अच्छा लगता है।
अपनी माइंड का, अपनी मदर का वो जो फॉर्म, अपनी मदर का जो फेस है अपने माइंड के अंदर याद कर करके मुझे बहुत अच्छा लगता है. आई फील एक्साइटेड, आई फील ओवरजॉयड when I think about my mother and what she was doing with us in the years agone. As I list, जब मैं ये मेलोडियस साउंड सुनता हूं, टप टप की आवाज टाइल्स, छत की टाइल्स के ऊपर जो गिरती है, तो मेरे लास्ट में मेरी मदर की मुझे याद आती है कि किस तरह मेरी मदर हमें रात को स्वीट स्टोरीज, स्वीट फैंसी फेरी टेल्स सुनाती थी. और वो जब तक हमें सुनाती थी जब तक कि हम सारे भाई बहन सो नहीं जाते. और मेरी मदर का मैं आज भी जब चेहरा महसूस करता हूं अपने माइंड में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. नथिंग इज बेटर देन द फेस ऑफ माई मदर. When I visualize my mother's face in my mind, or all these things happens when the raindrops falls on the shingles of the roof of the cottage chamber in which I am sleeping, and I am feeling happy to press the pillow. So this is all about this poem, Rain on the Roof. So this is all about this poem, Rain on the Roof. Now I hope, my dear students, you have learnt this poem, and I hope there is no doubt in your mind. My dear students, please encourage me also. Please like, share and subscribe my channel so that I always be giving such type of videos for you in future. Today, this much only. Okay, we will meet shortly. Till then, bye.